This is the next chapter, that is thermodynamics. Let's understand the terms now. Don't write anything, just understand the terms. So system. Now, what is system? Anything that we study is called a system. So if, for example, if we have a cylinder containing a gas, then that is the system for us. Surroundings. Whatever is outside the system is called the surroundings. Sir, the thermodynamics thing, we can continue after organic. So Uh-huh. do we have to note this in a separate notebook or No, this no, no. organic chemistry? Yeah, for organic, you should keep one separate notebook. So other than organic, whatever is there, you can note down in one notebook. For So this example, is important that if you are doing physical and inorganic, then physical and inorganic should be in one notebook. But organic should be in a separate notebook. Okay, fine. So surroundings means anything which is outside my system. Boundary is a separation. So whatever separates the system from the surroundings is called a boundary. So these are terms that we will come to know, we will understand better when we do the examples of system and surroundings. Just by definitions, things will not be very clear. But yes, you should know the definitions because sometimes they ask you in MCQs which of the following is a correct statement. And that is why you should know the definitions as well. Sir, we aren't supposed to note this. Not now, not now. Don't, today's lecture, you don't write anything. Next lecture onwards, you can write. Now you don't have to write anything. Just listen, understand the thing, because today we don't have any formula, we don't have any mathematical concept. We are doing only theory today, the basics, definitions and terms. Okay, so no need to write down anything now. Now, system plus surroundings is the universe. That means the total thing, the entire thing is the universe. Everything is a part of the universe. That means system that we are studying and also whatever we are not studying. So everything is a part of universe. Energy. Now, energy is, we study energy in this chapter. Now, exchange of energy between system and surroundings can occur in two forms. This is very important. If I'm saying that a system is gaining energy, that means the energy is coming inside the system. If I'm saying that the system is losing energy, that means system is losing, that means some amount of energy has gone out of the system. What is this mode of transfer of energy? That is, in what form does energy come in or go out? So there are two forms. One is heat and one is work. What is heat? Now see, any energy flow which is due to a difference in the temperatures is called heat. If I'm saying I have something which is hot, which is at a higher temperature, let's say something as is at a temperature of 100 degrees Celsius, and there is another object which is at a temperature of 50 degrees Celsius. If I connect the two objects, or if I keep one object on top of the other, there will be a transfer of heat from the hotter object to the colder object. That is why we say that is heat, because there is a difference in the temperatures of the two objects. When energy is flowing from one object to another object due to a difference in their temperatures, we call that flow of energy heat. Second form of energy transfer is work. What is work? Any flow of energy which does not arise due to a difference in temperatures is termed as work. So if we say that temperatures are not different, temperatures are same between the two objects or between the two bodies or between the two systems, then we say that there is no concept of heat because the temperatures are same. But still, due to some other thing, there can be a transfer of energy, that is work can be done. So due to the work, then energy will be transferred from one body to another. That means here energy got transferred because of work and not because of difference in temperatures. Work will be studied in detail because in this chapter we are dealing with heat as well as work. So we'll study those one by one. But as of now, remember that heat is something which is flow of energy due to the difference in temperatures. If temperatures are different,
then only we will call that flow of energy heat, not otherwise. So the word heat itself tells you that yes, something is hot and something is cold. So it's a comparative term. If I'm saying something is hot, I have to say it is hotter than something. So with what am I comparing it? If I'm saying some body is cold, then it is cold as compared to what? It is colder than some other object. So that reference has to be decided. We have to specify whether something is hotter than something or colder than something. So that reference is important. I cannot just say this is hot. No, I should say this is hotter than something, or I should say this is colder than something. So that comparison is extremely important in order to understand which body is hotter and which body is colder. Next, a process. A process is defined as any kind of change occurring in the state of system. That means if I'm saying that a system is going from one process to going from one state to another state, then I say a process has taken place. A process can take place if there's been a change in temperature, or if there's a change in the pressure, or if there's a change in the volume, or if there's a change in the number of moles. That means any kind of change taking place is called a process. So any process is accompanied by a change in any property or any quantity of the system. It could be anything like temperature, it could be pressure, it could be volume, it could be moles. If there is a change occurring in the state of system, we say that a process has taken place. For understanding a thermodynamic process, we must know the thermodynamic variables, and the variables are defined as those parameters which define the state of a system. A system is existing in some state. What do we mean by that word state? We mean that that particular state of a system has some parameters like pressure, volume, temperature, and internal energy, and so on. So if I'm trying to define the state of a system, I must say what are these parameters. If I clearly specify the parameters, that is, if I clearly specify the thermodynamic variables, that means I'm able to define the state of the system. If I want to define the state of a system, I must define what its pressure is, what its volume is, what its temperature is, what its energy is. All these things, if I'm specifying, that means I'm specifying the state of a system. So whatever parameters I use to specify the state of a system are called thermodynamic variables. Examples have been given: temperature, volume, pressure, enthalpy, internal energy, etc., etc. So if there is a change in thermodynamic variable, we say that a process has taken place. So if there's any change, even if only one variable changes, even if only one variable changes, then also we will say that a process has taken place. Let's understand cyclic processes. A closed cycle consists of a sequence of processes. That means one after the other, there are processes taking place. But ultimately, as after all these processes, the system comes back to its initial state. The system eventually returns to its initial state, which means that where it started from, it comes back to that same state. So it started from one state, there was a process, it went to another state. There was another process, it went to another state. There was another process, it went to another state, and so on and so forth. But ultimately, there was another process because of which it came back to its initial state, that means back to square one. If there is a series of such processes occurring, thereby making the system come back to its initial state, we call that a closed cycle or a cyclic process. Okay. Then thermal equilibrium. If there is no change in temperature with time, then the system is said to be in thermal equilibrium. So if the temperature remains constant with time, let's say after 2 hours also the temperature is constant, after 15 hours also the temperature of the system is constant, after 15 days also the temperature is constant, that means we will say that the system is in thermal equilibrium. There is no change in temperature of the system.
if there's no change in temperature of the system with time. The word time is important. You are seeing whether there's any change in temperature with passing time or not. Time has passed, as I said, 15 days, 15 hours, and so on. 25 days, 30 days. If there's no change in the temperature with the time that we are measuring, then the system is said to be in thermal equilibrium for that time period. Sir, is this possible only in vacuum? No, not so. It can be possible in many types of system. We will study thermal equilibrium in detail in the next lecture. Okay, mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium is something that you do in physics or mechanics. That is, if there is no change in pressure with time, then the system is said to be in mechanical equilibrium. So there is no change in pressure. That means indirectly we can say that there is no change in force with time. Ultimately, the net force acting on the system is zero, because force is a vector quantity in physics. So you calculate the net force. If the net force acting on a system is zero, then the system is said to be in mechanical equilibrium. Chemical equilibrium, when there is no change in concentrations with time, the system is said to be in chemical equilibrium. Chemical equilibrium is a separate chapter which we will study again later. So what happens in chemical equilibrium? Chemical equilibrium is a concept wherein the concentrations do not change with time. That means the concentrations have become constant. Whose concentration has become constant? The concentration of a reactant has become constant. The concentration of the product also has become constant with time, right? So if there is a chemical reaction, and if I say that the concentration of the reactant has become constant after 10 minutes, that means chemical equilibrium has been achieved after 10 minutes. So after 10 minutes, that means the chemical equilibrium has been achieved because there is no change in concentration of any reactant, and also there is no change in concentration of any product. What is concentration? Concentration is moles per liter. There is the number of moles of the substance upon liters that is present in 1 liter of the volume. So that is called concentration. Concentration is moles upon liters. Number of moles of the substance present in a unit volume of the container. Okay. Now coming to the concept of thermodynamic equilibrium. If a system is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium, as well as in chemical equilibrium, that is all types of equilibrium are existing at the same time, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium. So that means nothing will change with time. Everything is constant. That means it is in thermodynamic equilibrium. No change in pressure, no change in temperature, no change in concentration, right? No change in pressure, no change in temperature, no change in concentration. That means the system is existing in a state of thermodynamic equilibrium. Okay, so till here we were doing plain and simple theory. Now we'll start with things which are mathematical also. So let's understand that. Now see. Okay. Now see, state functions. What are state functions? These are certain parameters or properties that depend only on the initial and final states of the system. If I'm telling you a process has taken place, that means I can say that a system has gone from one state to another state. That means what? Something has changed. Initially, all things were there, and like pressure, volume, temperature, these things were present. And out of these things, any one has undergone a change, or more than one parameter has changed. That means a process has taken place. If a process has taken place, that means I clearly know what the system is in right now. That means which is the state of the system right now. That means what are the pressure values, temperature values, and all these things right now. So right now, if I know that so and so things are the values, and before the process also I know so and so were the values, that means I will say that a process has taken place. Now, if I just want to define, if I have certain quantities or if I have certain functions which depend only, whose values depend only on the initial and final states of the system, that means they are state functions. What do I mean by that? I mean that
the path which I have followed for reaching one state to another state. That means the process followed a particular path. Now, what type of path did it follow is not going to modify the value of a property. That property whose value does not get modified by the path followed is called a state function. That means I will just look at the initial state of the system. I will just look at the final state of the system. Based on the initial and final states of the system, I can clearly understand the value of a property, and that property will be called a state function. That means it is not dependent on the path followed. I can go in a zigzag manner. I can go in a straight line. I can follow a curved path. Does not matter. Irrespective of the path followed by me, the value of the property will remain the same because it depends only and only on the initial and the final states of the system. Such values are called state functions. Examples. Examples of state functions are, there are many examples. So I just wrote a few of them. Internal energy, entropy, enthalpy, temperature, etc., etc. So in order to know the examples of state functions, let's understand path functions. Then it will be easier for you to remember the examples of state functions. Obviously, the path functions, as the name suggests, will be those quantities which depend on the path followed by a system. That means if I follow a rectilinear path, that is, if I follow a linear path, the value of that path function will be something different. If I follow a curved path to reach from one state to another state, the value of the path function will be different. So it is very much dependent on the path followed. For example, heat, work, and heat capacities. Now see, in order to remember a shortcut, just remember that there are only three values which are path functions. These are the three path functions which I have mentioned. One is heat, one is work, and one is heat capacity. So anything which is apart from these three will definitely be a state function. So this way you need not remember all the examples of state functions. Just remember the three examples of path functions, that is heat, work, and heat capacities. If I just remember the three examples of path functions, then all things which are lying apart from these three will be state functions. That is one shortcut which you can keep in mind. Okay. Extensive properties. The variables whose value depend, right? The variables whose values depend on the mass or the size or the quantity of matter present are called extensive properties. Means what? If I have 5 kilograms of something, then for that I'll have to maybe supply a particular amount of heat. But if I have 10 kilograms, if I want to heat 10 kilograms of a substance, I'll have to supply more heat. If I want to heat 100 kilograms of the substance, I'll have to supply again more heat. Which means that with the changing amount of the substance, the quantity of heat supplied also changes. Therefore, I can say that heat is an extensive property. Similarly, moles. If I say that I have these many moles in 5 grams of oxygen gas, so the number of moles present in 5 grams of oxygen gas will be 5 upon 32. But if I want to calculate the number of moles present in 50 grams of oxygen, then it will be equal to 50 upon 32. That means the value has changed. Similarly, if I want to calculate the number of moles present in 1000 grams of oxygen, then the value of that will be 1000 upon 32. So the number of moles also changes with the changing amount of mass, and that is why moles will also be an extensive property. Similarly, the volume. If I have a small substance, its volume will be low. If I have a very large substance, its volume will be large. That means the volume also is an extensive property. Same holds true for heat capacity, enthalpy, work, etc. So work is also an extensive property. That means I will have to do more work if I have more number of moles of gas. Maybe the number of moles of gas is less, then I'll have to do a less amount of work in order to maybe compress it. So the work parameter is also an extensive property. Whatever depends on the mass is definitely going to be an extensive property. Intensive property, so it will be the opposite of extensive property. So those properties which do not depend on the amount of matter or size of sample are called intensive properties.
For example, if I'm talking about density, now see, density is independent of what substance, what amount of substance I'm taking. If I say the density of water is, let's say, 1 gram per ml, if I say the density of water is 1 gram per ml, that means by default I know that density of water will be 1 gram per ml, because density itself is mass per unit volume. That means the density is defined as the mass of 1 ml of a substance, or the mass of 1 liter of a substance. That means when I'm already specifying that density is the mass of 1 ml of a substance, that means I do not have to define it separately for different amounts of the substance. 1 ml के लिए ही डेंसिटी वैलिड होता है. तो डेंसिटी का मतलब ही ये है कि मास ऑफ 1 ml ऑफ अ सब्सटेंस. चाहे मैं 50 ml लेके आऊं तो भी मैं डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 ग्राम पर ml ही बोलने वाला हूं. चाहे मैं अगर इतना सारा वाटर अगर मैं लेके आऊं 2 लीटर पानी लेके आऊं तो भी मैं वो 2 लीटर पानी का डेंसिटी तो मैं 1 ग्राम पर ml ही बोलने वाला हूं. That means density is an intensive property. Similarly, temperature also is an intensive property. अभी अगर मैं बोलूं कि एक बड़ा सा रूम है, एक बड़े से रूम के अंदर टेम्परेचर क्या है, फॉर एग्जांपल उस रूम का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस रूम के किसी भी कोने में जाऊंगा, एक छोटा सा अगर कॉर्नर लूंगा उस रूम का मैं, तो भी उस कॉर्नर के अंदर टेम्परेचर मुझे 40 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा. और रूम का अगर मैं एक बड़ा पोर्शन ले लूं तो भी उस बड़े पोर्शन ऑफ रूम के अंदर भी मुझे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा. तो टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग अगर मैं रूम का साइज बदल दूं तो. रूम का साइज कितना भी हो, टेम्परेचर उतना ही रहने वाला है. That means temperature also is an intensive property. Coming to pressure, same thing. रूम के अंदर मैं प्रेशर किसी भी कॉर्नर में चेक करूं तो मुझे वही नजर आएगा, प्रेशर का वैल्यू सेम आएगा. चाहे मैं एक छोटा कॉर्नर लूं या मैं उसका दूसरा वाला कॉर्नर लूं या फिर एक बड़ा सा स्पेस ले लूं रूम का. अगर मैं रूम को दोनों हिस्सों में काट मतलब एक का सेगमेंट लगा दूं, एक रूम को मानो मैंने 2 रूम्स में कन्वर्ट कर दिया, एक रूम को मैंने अगर 2 रूम्स में कन्वर्ट कर दिया तो भी क्या होगा, प्रेशर तो सेम ही रहने वाला है ना. ऐसा तो नहीं है कि मैं रूम को हाफ कर दिया तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. So pressure is also an intensive property. Refractive index, yes, सर that अगर is also. कंप्रेस किया तो हो सकता है ना. कंप्रेस किया तो ना, that is a different thing. You are applying external pressure. I'm not talking about that. I'm saying जो प्रेशर भी है वो प्रेशर क्या चेंज हो रहा है रूम का साइज बदलने से? No, that is not changing. कंप्रेस कर रहे हो मतलब तुम एक्सटर्नली उस पर वर्क कर रहे हो, वो तो अलग चीज हो गई ना. वर्क का इसमें मत लो एप्लीकेशन. We are just comparing the change in the value with respect to the mass, nothing else. मास बदलने से क्या वो चीज बदल रही है या नहीं बदल रही है, ऐसा है. तो मैं अगर रूम का साइज छोटा कर दूं तो भी वो प्रेशर उस रूम में तो उतना ही रहने वाला है ना. तो रूम का साइज छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो प्रेशर में कोई फर्क नहीं आ रहा है. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर टेम्परेचर ऑल्सो. तो रूम को मैं एक ही रूम के अंदर पार्टीशन लगा के उसको 2 कमरों में कन्वर्ट कर दूं तो भी वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में ही तो सेम होने वाला है ना. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके सर बट वो तभी पॉसिबल होगा ना जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे. वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाएंगे ना. वो तो तुम्हें कुछ करना नहीं है ना उसके लिए. तुम अगर उसको हाफ में काट रहे हो, एक रूम के अंदर तुम अगर एक पार्टीशन लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आधे मोल्स एयर की इस तरफ, आधे प्रेशर मोल्स एयर की इक्वल उस करने तरफ. के लिए. हाँ प्रेशर इक्वल करने के लिए. हाँ, वो ऑटोमेटिक होगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा. That is what we are saying. So pressure is an intensive property. Coming to refractive index. Refractive index is a property of a material. तो वो एक, अगर मैं बोलूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 100 है, अगर बोल दो कि ग्लास का एक छोटा टुकड़ा लेके आता हूं तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही रहेगा क्योंकि मटेरियल तो ग्लास ही है. If I take a very large amount of glass, let's say if I take a proper glass जिसपे हम लोग पानी पीते हैं, और वो ग्लास भी मानो उसी ग्लास से बना हुआ है जो छोटा टुकड़ा लिया था, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम ही रहेगा. तो चाहे वो ग्लास छोटा वाला हो या कोई बड़ा वाला कॉफी पीने वाला कप हो या कोई पानी पीने वाला ग्लास हो, उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना. बिकॉज मटेरियल अगर सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहता है. दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. Coming to EMF. EMF also is an intensive property. सर वो थिकनेस पे मैटर नहीं करता.
नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो मटेरियल का थिकनेस तो फिक्स्ड है ना, अलग मटेरियल लोगे तो अलग थिकनेस हो जाएगा, बट वो मटेरियल तो वही है ना, उस पे वो अगर तुमने उसी ग्लास से बनाया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा ना, Okay, sir. दैट इज व्हाई. So that does not depend on the thickness of that material. If the material remains the same, the refractive index also will remain the same. Okay, molar volume. अब देखो, volume is an extensive property, but molar volume is an intensive property. ऐसा क्यों? Because molar volume is the volume of 1 mole of a substance. अब जब बता ही दिया डेफिनेशन में कि मोलर वॉल्यूम का मतलब ही होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो चाहे मैं 5 मोल लेके आऊं तो भी मोलर वॉल्यूम तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का ही लिया जाएगा ना. That means molar volume is also an intensive property. If I ask you what is the molar volume of 5 grams of oxygen, तो भी आंसर वही रहेगा. अगर मैं बोलूं what is the molar volume of 100 grams of oxygen, तो भी आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर मोलर मास. अब मोलर मास ऑफ, अगर मैं पूछूं what is the molar mass of नाइट्रोजन, अब मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मैं बताऊंगा तुमको कि हाँ इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अगर 28 मान रहा हूं मैं, 28 ग्राम्स पर मोल. अब 28 क्या है वो, 28 का मतलब ये है कि 1 मोल का मास 28 ग्राम्स है. अब मैं अगर 5 ग्राम लेके आऊं तो भी मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28. 100 ग्राम नाइट्रोजन गैस लेके आऊं तो भी मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, राइट. 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन लेके आऊं तो भी मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28. That means molar mass also is an intensive property. Specific heat capacity and all these things also are intensive. Why? अब देखो specific heat capacity का मतलब क्या है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ही है, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ही है कि वो एक 1 ग्राम के लिए डिफाइन किया जा रहा है या 1 किलोग्राम के लिए डिफाइन किया जा रहा है. डेफिनेटली इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. कोई भी चीज अगर आप फिक्स कर देते हो कि उसका बेसिस 1 किलोग्राम के लिए है या 1 मोल के लिए है या 1 ग्राम के लिए है, तो बाय डिफॉल्ट वो इंटेंसिव बन जाता है, क्योंकि उसका डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है कि वो 1 यूनिट ग्राम्स के लिए या यूनिट मोल्स के लिए डिफाइंड है. तो कितना भी ग्राम्स लेके आऊं मैं या कितना भी ज्यादा अमाउंट लेके आऊं मैं, तो स्पेसिफिक वैल्यूज विल नॉट चेंज, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट एक अमाउंट के लिए है, 1 ग्राम के लिए या 1 किलोग्राम के लिए. तो स्पेसिफिक वर्ड देखते ही आप बोल सकते हो कि दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. So whenever you come across these words, molar and specific, these two words will clearly indicate that the quantities are intensive properties. Similarly, molarity, normality, these also are intensive properties, because वो भी defined है कि हाँ 1 लीटर के लिए कितने मोल्स है या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स है. तो ऐसा करके जितना भी डिफाइंड है ऐसा बेसिक कि 1 ग्राम के हिसाब से या 1 मोल के हिसाब से या 1 किलोग्राम के हिसाब से या 1 लीटर के हिसाब से या 1 मिलीलीटर के हिसाब से जो भी चीजें डिफाइंड है, मोलर एंड स्पेसिफिक, ऑल दोज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. हीट कैपेसिटी. Now please don't get confused. Heat capacity and specific heat capacity are not the same thing. What is heat capacity? उसका सिंबल भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कैपिटल C. So that is the heat required to raise the temperature of some amount of a substance by 1 degree Celsius. Now remember when I say that some amount of a substance, वो amount अभी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो वो अमाउंट हो सकता है 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, तो उसके हिसाब से हीट कैपेसिटी की वैल्यू बदल जाएगी. तो कितना ग्राम्स या कितना किलोग्राम्स ऑफ सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हीट कैपेसिटी कितनी है. That means heat capacity is an extensive property because it depends on the amount of substance taken. तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी सिर्फ ये हीट होती है कि how much heat is required to raise the temperature of something by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर, तो कितना हीट सप्लाई करना है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. Another thing which you have learned earlier is that by 1 degree Celsius, हाँ वही मैं बता रहा हूँ अभी. You must have learned this already in gas laws कि अगर मैं बोलूँ by 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर by 1 केल्विन भी चेंज हो रहा है. यानी डेल्टा टी का जो वैल्यू है, that if that is always same, डेल्टा टी का वैल्यू अगर मैं बताऊं कि अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, दिस डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज.
अगर मैं बताऊं डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स आई कैन ऑल्सो से डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 केल्विन। ये आपको ध्यान में रखना है, गलती मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं 273 ऐड करके। दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? बिकॉज प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट टेम्परेचर, दिस इज डिफरेंस इन टेम्परेचर्स। डिफरेंस इन टेम्परेचर्स दोनों स्केल्स पे ही सेम रहता है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में लो या चाहे वो केल्विन में लो। एनी डाउट इन दिस पार्ट? Okay, delta T is independent of what you are taking. Delta T is independent of degree Celsius and Kelvin, यानी उसका वैल्यू सेम रहता है डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। अब इसको अगर किसी को डाउट है तो मैं दिखा देता हूं कैसे। Sir, can you please repeat this point? I was disconnected. हाँ, देखो अभी वैसे तो ये ऑलरेडी यू मस्ट हैव लर्न्ड दिस इन गैस लॉज, गैसियस स्टेट में तो ये कर चुके हो, फिर भी बता देता हूं मैं। If I say temperature, some temperature value is, let's say 20 degrees Celsius, and the temperature of the system has increased to 30 degrees Celsius. Can I say that means the value in delta T is T2 minus T1, and that is 10 degrees Celsius. Now the temperature of the system has increased by 10 degrees Celsius. That is why I'm saying delta T is equal to 10 degrees Celsius. कैसे ये 10 आया? 30 minus 20. If I want to calculate the value of delta T in Kelvin, तो क्या होगा? 20 degrees Celsius को मैं लिख सकता हूँ केल्विन में वैल्यू 273 plus 20, that is 293 Kelvin is the value of temperature in Kelvin. And if it is 30 degrees Celsius, I can say it is 303 Kelvin. अब मैं डेल्टा टी निकाल रहा हूं केल्विन में, तो भी 10 केल्विन ही आया ना। So the value of delta T is same in degree Celsius as well as in Kelvin. So this point is very very important. डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूं चेंजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस इट इज सेम एज सेइंग चेंजिंग टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो ये मैं आपको डिफरेंस, इसके लिए इसका मतलब दिखा दिया यहाँ पे। डेल्टा टी आप कैसे भी कैलकुलेट करो, आपको T2 माइनस T1 ही करना है। तो T2 माइनस T1 जब करोगे आप, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो केल्विन में भी सेम आएगा, डिग्री सेल्सियस में भी सेम ही आएगा। All right. Now coming to specific heat. Okay, these are the units of heat capacity. Different units I have given, right? Joule per Kelvin, kilojoule per Kelvin, calories per Kelvin. तो कुछ भी हो सकता है, आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। Specific heat capacity. Now, specific heat capacity जो है, अब वर्ड स्पेसिफिक आ गया। तो स्पेसिफिक मतलब क्या हो जाएगा? 1 ग्राम के लिए या 1 किलोग्राम के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब स्पेसिफिक। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब हो सकता है 1 ग्राम, हो सकता है 1 किलोग्राम। यूनिट मतलब 1। सो 1 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस को हीट करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो कितना हीट सप्लाई करना है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है, इतने सारे यूनिट्स होते हैं उसके। जूल पर केजी केल्विन, जूल पर ग्राम केल्विन, राइट? किलोजूल पर केजी केल्विन, किलोजूल पर ग्राम केल्विन, कैलोरीज पर ग्राम केल्विन, यानी जितने भी आपके एनर्जी के यूनिट्स है वो सब आपके हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यू हैव ग्राम या किलोग्राम में से कुछ, और साथ ही साथ केल्विन या डिग्री सेल्सियस में से कुछ। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं बोलूं इसमें से एसआई यूनिट कौन सा है, इतने सारे यूनिट्स में से अगर मैं बोलूं कि एसआई यूनिट कौन सा है, तो ऑब्वियसली एसआई यूनिट ये वाला रहेगा। दिस इज एसआई यूनिट। व्हाई? Because joule is the SI unit of energy, kilogram is the SI unit of mass,
Kelvin is the SI unit of temperature. So joule per kg Kelvin will be the SI unit of specific heat capacity. So joule per kg Kelvin is the SI unit of specific heat capacity. These are the different units. अगर कन्वर्ट करना पड़े इसके लिए मैंने आपको देके रखे ये सारे यूनिट्स. हो सकता है कि वैल्यूज क्वेश्चंस में कुछ और देके रखे. यूनिट्स अलग अलग यूनिट्स में वैल्यूज दे सकते हैं. आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कैसे क्या कन्वर्ट करना है. दैट वी विल डू लेटर. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोटेशन. नोटेशन का ध्यान रखो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखा और तभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर किया तो उसको बोलते हैं सीपी. लेकिन ये सी जो है ना, ये स्मॉल सी है. स्मॉल सी और फिर स्मॉल पी ऐसा है. डू नॉट राइट कैपिटल सी हियर. So specific heat capacity at constant pressure is denoted by small c and small p as a subscript. Specific heat capacity at constant volume is denoted as small c and small v as a subscript. ऐसा, right? तो what is that? मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के मैंने ये मेजर किया है कि कितना हीट देना पड़ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने में 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए. उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के मैंने अगर हीट सप्लाई किया तो उसको बोलेंगे सीवी. प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर मैंने हीट सप्लाई किया तो उसको बोलेंगे सीपी. कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. एनी डाउट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इनमें क्या डिफरेंस है? किसमें? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब रिलेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जस्ट अ टर्म गिवन टू शो कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट देना पड़ता है. लेकिन वो किस कंडीशन पे दिया आपने? प्रेशर कांस्टेंट था सिस्टम का कि वॉल्यूम कांस्टेंट था? तो टू बी मोर स्पेसिफिक वी आर डिफाइनिंग दिस टू एडिशनल टर्म्स. बिकॉज अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो आपको ये अज्यूम करना है कि प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, तो उसको सिर्फ हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. बट अगर मैंने बोल दिया कि प्रेशर कांस्टेंट रख के मैंने हीट के सप्लाई किया तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. सिमिलरली अगर मैंने सिस्टम का वॉल्यूम सेम रखा था, वॉल्यूम सेम रख के मैंने उसको हीट किया था तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब वही है कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है. किसका? 1 किलोग्राम का या 1 ग्राम का. ओके, वैसे ही अभी आपको आ गया मोलर हीट कैपेसिटी. व्हाट इज दैट? अब स्पेसिफिक वर्ड के बदले में मोलर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? अब यूनिट मास के बदले में 1 मोल हो जाएगा. सो it is the amount of heat that you supply to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius. तो उसके यूनिट्स अभी ये रहेंगे. These are the units. जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा. अभी जूल पर ग्राम केल्विन नहीं बोल सकते, अभी जूल पर मोल केल्विन बोलना पड़ेगा. सिमिलरली किलोजूल पर मोल केल्विन या कैलोरीज पर मोल केल्विन. 1 मोल को हीट करने के लिए कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी. सिमिलरली अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रख के मैंने उसको हीट किया तो उसको बोलेंगे कैपिटल C एंड स्मॉल p, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. And if I keep the volume of system constant, then it is called molar heat capacity at constant volume. ये नोटेशन आपको पता होने चाहिए. ये नोटेशन भी यूज किया जाता है CP के लिए और ये नोटेशन यूज किया जाता है CV के लिए. That small m indicates molar, that means 1 मोल के लिए. जैसे आपने सीखा है वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए आप Vm लिखते हो. दिस Vm मींस मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस. वैसे ही अगर मैंने लिख दिया Cm, दैट Cm मींस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस. और Cm के बाजू में P लिख दिया कॉमा डाल के, तो मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ऐसा लिख दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम.
Okay. Now, internal energy का क्या मतलब है किसी सिस्टम का, वो समझते हैं. What is internal energy? Now see, if you are sitting at one place right now, you also have some internal energy. If you are standing, then also you have some internal energy. If you are walking, then also you will have internal energy. If you are running, then also you will have internal energy. So internal energy is there inside the system. But what is the definition of internal energy? What is the meaning of it? So it is defined as the total of kinetic and potential energies. मतलब क्या? वो अभी समझते हैं. Kinetic energy is a consequence. मतलब kinetic energy किस लिए होता है? Kinetic energy is a consequence of translational motion, rotational motion, vibrational motion of molecules and atoms. मतलब अभी आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स जो है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, टकरा रहे हैं. They are not stagnant. They are definitely in motion. That motion of molecules is called kinetic energy. So that kinetic energy is present in any system. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप में है तो आप जिंदा हो, उसके लिए आपके अंदर है. अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लूं तो उसके अंदर भी एटम्स है. वो ऑब्जेक्ट तो जिंदा नहीं है, बट फिर भी वो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी है, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं. दैट वे. एक गैस ले लो, उस गैस के मॉलिक्यूल्स भी है, वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वो गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी है, because the molecules of the gas are in motion. That energy is called kinetic energy. What is potential energy? Potential energy is a result of intramolecular bonding and bond energy. यानी जितने भी bonds present है एक एक molecule में, तो वो bonds में जो energy stored है उसको बोलते हैं potential energy. अभी मानो ऑलरेडी आपके अंदर मसल्स है, वो मसल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, मस्कुलर एनर्जी, तो दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? So whatever energy is present as a result of the bonds of molecules, as a result of the intermolecular forces of attraction in a gas, as a result of the bonding between two molecules, intramolecular bonding, ये जितने भी बॉन्ड ओरिएंटेड एनर्जीज है, बॉन्ड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी जो है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. हायर टेम्परेचर मींस हायर काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज व्हाई हायर इंटरनल एनर्जी. तो मतलब टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी. टेम्परेचर अगर मैं कम कर दूं तो इंटरनल एनर्जी विल बिकम लेस. That means if you are talking with respect to temperature, remember this, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है. अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली विल चेंज, डेफिनेटली. इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, internal energy will also increase. If temperature is decreasing, the internal energy will also decrease. This is very, very important point. The units of internal energy are joule, kilojoule, calorie. Obviously, energy है तो energy के ही 3 units हम लोग यूज करते हैं, एक जूल, एक किलोजूल और एक कैलोरी. हम लोग कोई और यूनिट यूज करने वाले नहीं है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में आपको यही 3 यूनिट्स एनर्जी के दिखेंगे, एक है जूल, एक है किलोजूल और एक है कैलोरीज. अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है तो मैं दिखा देता हूँ. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स. 1 kilojoule is equal to 1000 joules. हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको यूज करते हैं 4.2 जूल्स. ओके, now there are certain names or terms associated with processes. तो
जैसे मानो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, अगर किसी ने बोला तो आप बोलोगे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. If temperature is constant during any process occurring in the system, that means it is called an isothermal process. Temperature constant का मतलब क्या होगा? Change in temperature is zero. Delta T is zero. Why delta T is zero? Because temperature is constant. Delta is called change. अगर constant है मतलब कोई change नहीं है ना, तो उसको बोलेंगे delta T is equal to zero. Right. Now, if you have an ideal gas, undergoing such a process, then I can say that PV is equal to constant because it is as per Boyle's law. Boyle's law वही बोलता है कि अगर temperature constant हो गैस का, so PV is equal to constant. That means P1 V1 is equal to P2 V2. So temperature constant रहता है, उसको बोलते हैं isothermal process. और हम लोग बोल सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2. A diabatic process में ऐसा होता है कि there is no exchange of heat between system and surroundings. ना ही heat system से बाहर जाएगा और ना ही heat system के अंदर आएगा, उसको बोलते हैं adiabatic process. Q is the symbol for heat, so Q is equal to 0. That means it is an adiabatic process. ना ही heat अंदर से बाहर जाएगा, ना ही heat बाहर से अंदर आएगा. Remember this word is important. Exchange. Exchange का मतलब होता है अंदर भी ना आना, बाहर भी ना जाना. Exchange. Inflow and outflow both are a part of exchange. If I'm saying there is no exchange, that means ना ही कोई inflow है heat का और ना ही heat का कोई outflow है. तो exchange word का use करना जरूरी है. आप सिर्फ बोल दोगे no heat is coming, that is not correct. Because coming नहीं तो going है क्या? Going भी तो allowed नहीं है diabetic में. तो exchange word use करना पड़ता है. Exchange का मतलब क्या है? ना ही heat अंदर से बाहर जाएगा और ना ही heat बाहर से अंदर आएगा. No exchange. So there is no possibility of heat inflow or heat outflow. उसको बोलते हैं adiabatic process. Isobaric process का मतलब होता है कि pressure constant है. अगर pressure constant है सिस्टम का तो उसको बोलेंगे isobaric process. Isocodic process होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग isocodic process. मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब डेल्टा V जीरो. डेल्टा मतलब चेंज, V माने वॉल्यूम, डेल्टा V जीरो, दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो. दैट मींस इनिशियल वॉल्यूम इज सेम एज फाइनल वॉल्यूम. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन isocodic process. इनिशियल वॉल्यूम को V1, फाइनल वॉल्यूम को V2, दोनों बराबर मतलब डेल्टा V जीरो, so it is called an isocodic process. So whenever I'm writing this word delta, डेल्टा के आगे मैंने अगर टेम्परेचर लगा दिया, इसका मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. अगर मैंने लगा दिया डेल्टा V तो मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. राइट. सो डेल्टा जिस चीज के ऊपर लग जाता है उसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज कॉल्ड चेंज. अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डेल्टा जीरो आएगा, बिकॉज डेल्टा मतलब चेंज. अगर कांस्टेंट है मतलब कोई चेंज नहीं है, सो डेल्टा ऑफ दैट पैरामीटर विल बी इक्वल टू जीरो. ओके. पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये याद रखना है दैट अ प्रोसेस व्हिच हैज दिस काइंड ऑफ रिलेशन. ऐसा टाइप का अगर कोई रिलेशन है क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ओके. PV to the power of x is equal to constant. ऐसा अगर कोई प्रोसेस फंक्शन दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. बस इतना याद रखना है. और x को बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स. व्हाट इज x? x इज द पावर ऑफ v. ध्यान में रखना है ये ऐसा नहीं है, ऐसा मत लिख देना. कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं बट ऐसा नहीं है. दिस इज रॉन्ग. इट इज ओनली वॉल्यूम टू द पावर ऑफ x. सो ब्रैकेट डालना नहीं है. ओके. ब्रैकेट डालना नहीं है.
It is just P v to the power of x is equal to constant. ऐसा है. प्रेशर के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है. जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ वॉल्यूम यानी v के ऊपर है, और उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट को पॉलीट्रोपिक इंडेक्स. अगर x का वैल्यू गामा हो गया, गामा, ओके, दिस इज कॉल्ड गामा. अगर x का वैल्यू गामा के बराबर हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल डायबिटिक प्रोसेस. उस केस में अब गामा क्या होता है दैट वी विल डू लेटर, बट फिलहाल याद रखो गामा हर एक टाइप ऑफ गैस के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होता है. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गैस द वैल्यू ऑफ गामा इज फिक्स्ड. तो अगर ऐसा हो गया P v to the power of gamma is equal to constant, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिवर्सिबल डायबिटिक प्रोसेस. ओके, यानी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का एक सब पार्ट बोल सकते हैं हम लोग रिवर्सिबल डायबिटिक को. सो द जनरल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, बट इफ x becomes equal to gamma, then we will call that process a reversible diabetic process. That means I can say that reversible diabetic process is a subset of polytropic process. Subset मतलब क्या, उसका part, right? So I can say that reversible diabetic process is a subset of polytropic process. Because जब x की वैल्यू गामा के बराबर होती है तो ही उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल डायबिटिक. Otherwise, we will call it polytropic. Okay. Now, ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है. डेरिवेशन याद रखना नहीं है. Don't get into derivation of all these things. तो एक ये आपका रिलेशन है कि अगर मोलर हीट कैपेसिटी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का पूछा तो उसका ये एक फॉर्मूला होता है CV minus R by X minus 1, where R is gas constant. You know that gas constant is 8.314 joule per mole Kelvin. This is the value of gas constant. And what is CV? CV हम लोगों ने कुछ टाइम पहले सीखा. CV is the molar heat capacity at constant volume. Sir, your mic is muted. So this is molar heat capacity at constant volume. CV बोलते हैं उसको. All right. Okay, now let's come to the types of system. Open system. What is open system? So again the word exchange has come. मतलब inflow and outflow. A system which can exchange both matter and energy with surroundings. Right. उसमें से हीट बाहर जा सकता है, उसमें से हीट अंदर आ सकता है, उससे कोई चीज सब्सटेंस बाहर जा सकती है, उसमें हम लोग एडिशनली कुछ डाल सकते हैं, उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम. एग्जांपल समझ लेते हैं. An open beaker without lid. So it's an open system. सबसे आसान यही है, सबसे सिंपल सिस्टम यही है.
Understand this. A system which cannot exchange matter but can exchange energy with the surroundings is a closed system. मतलब उसमें से कुछ हम लोग मैटर निकाल नहीं सकते, ना ही हम लोग उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, लेकिन उससे हीट या एनर्जी जो है वो बाहर अंदर आ सकती है, एक्सचेंज एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। एक एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। Look at the diagram. You have a cylinder or a beaker type of thing, and उसके अंदर गैस है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर गैस है। अब एक पिस्टन लगा दिया है आपने। There is a piston, and that piston is a movable piston. मतलब उस पिस्टन को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। We can lift it, we can press it down. So it's a movable piston. And there is an adiabatic valve. That adiabatic valve का मतलब क्या है कि वो insulating material से बना हुआ है बाहर का। Insulating material. Insulating मतलब क्या? जिससे हीट अंदर बाहर नहीं आ सकता है। So there is an adiabatic valve. There is an adiabatic valve. That adiabatic valve will not let heat come in or go out because it's made up of insulating material. Adiabatic valve का मतलब यही होता है कि वो insulating material से बना हुआ है। अभी देखो, बात ये है कि ये closed system है क्या? तो है तो कैसे है? Let's read the definition of closed system again. A system which cannot exchange matter but can exchange energy. मैटर तो इससे बाहर जा नहीं सकता है। क्या आप उसमें से गैस निकाल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज ये क्लोज्ड है। ऊपर आपने लगा दिया है इसको पिस्टन, तो ये क्लोज्ड है। ये ऐसा नहीं है कि आप उसको हाथ डाल के निकाल दोगे कुछ गैस। ना ही इसमें से गैस बाहर जा सकता है बिकॉज क्लोज्ड है। ये तो ऊपर से क्लोज्ड है ना। बीकर के ऊपर आपने एक पिस्टन लगा दिया, मतलब ये एक लिड जैसा बन गया, कवर जैसा बन गया। So gas particles cannot escape or gas particles cannot go out of this beaker. Similarly, I cannot put any gas inside this also because it's closed from the top. So I cannot put anything. I cannot introduce or add anything from the top of the beaker. तो यहाँ तक ये क्लियर है कि उसमें से कोई मैटर ना ही बाहर जा सकता है, ना ही मैटर अंदर आ सकता है। Now, what about energy? अब मैंने बता दिया कि ये एडियाबेटिक वॉल है, मतलब इसमें से हीट तो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो सकता है। इसमें से हीट इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दिस कैनॉट एक्सचेंज हीट। दिस सिस्टम कैनॉट एक्सचेंज हीट, यानी ना ही इसमें से हम लोग कोई बाहर निकाल सकते हैं मैटर, ना ही इसमें से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं हीट, और ना ही इनमें से अंदर कोई जा सकता है मैटर, ना ही कोई गैस पार्टिकल अंदर जा सकता है, ना ही हीट अंदर गैस को जा सकता है, बिकॉज वॉल जो है वो अडायबेटिक वॉल है। So it cannot exchange heat, it cannot exchange matter, but definition पढ़ो अभी। यहां पे मैं लिखा है can exchange energy, closed system can exchange energy, ऐसा लिखा है मैंने। Closed system can exchange energy। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि it cannot exchange heat because the wall is an adiabatic wall. That means it cannot exchange heat ना, adiabatic wall है तो। So it cannot exchange heat
and it cannot exchange matter also, but still I'm calling it a closed system. अब क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन तो ये बोलता है कि इट शुड एक्सचेंज एनर्जी, है ना, it should be able to exchange energy, then only it will be called a closed system. Then why am I calling this a closed system? जब मैं बोल रहा हूं कि वॉल अडायाबेटिक है तो हीट फ्लो नहीं हो सकता है, then why am I saying that it can exchange energy? That is because मैंने बोला है आपको पहले ही कि एनर्जी मोड ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, एक होता है आपका हीट और एक होता है आपका वर्क. आज ही हम लोगों ने शुरुआत में किया ये. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर एज हीट और एज वर्क. अब ये हीट तो यहां से पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये वॉल अडायाबेटिक वॉल है, बट ये पॉसिबल है बिकॉज ये वर्क के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. सो वी आर सेइंग दैट द सिस्टम इज एबल टू एक्सचेंज एनर्जी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. सर वर्क के फॉर्म में इसलिए हो रही है क्योंकि मूवेबल पिस्टन है ना. हाँ, सो आई एम कमिंग टू दैट नाउ. ये मूवेबल पिस्टन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब पढ़ लो इसका मतलब. When the piston moves upward, the gas expands and work is done by the gas. ये मतलब है, right? और उल्टा भी बोल सकते हैं कि if the piston moves downward, then the gas compresses and work is done on the gas. मतलब क्या? पिस्टन के मूवमेंट की वजह से इसमें वर्क हो रहा है, and because work is happening, I am saying that energy is being transferred, because energy is transferred either as heat or as work. Heat तो नहीं हो रहा है, हीट तो नहीं हो रहा है क्योंकि अडायाबेटिक वॉल है तो हीट तो होगा नहीं, बट वर्क तो हो रहा है ना क्योंकि पिस्टन तो मूवेबल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वर्क के फॉर्म में ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस और कंप्रेशन ऑफ गैस, then also we will say that energy is transferred, and this is an example of a closed system. Very very important example. कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में, बोल देते हैं no exchange of matter, no exchange of heat, so this is a isolated system. but ऐसा गलत है क्योंकि भले ही हीट एक्सचेंज ना हो, वर्क अगर एक्सचेंज हो रहा है मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. That is why this is a closed system. अगर वर्क हो रहा है मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. कैसे वर्क हो रहा है? पिस्टन अगर अपवर्ड जा रहा है तो भी वर्क हो रहा है, पिस्टन अगर डाउनवर्ड डाल रहे हो तो भी वर्क हो रहा है. That is why we say that energy is transferred and hence this system can exchange energy and hence this system is a closed system. मैटर तो नहीं हो रहा है, मैटर तो आप एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो, बट एनर्जी एक्सचेंज हो पा रही है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. Coming to the next type of system, that is the last type, isolated system. See, right now you don't have to write anything, just listen. आज के लेक्चर में बस सुनो, बाद में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, but it is not compulsory because you have to understand this. It's theoretical. Follow these notes because these will help you for MCQs and theoretical questions. So follow these notes. Last type of system is isolated system. इसमें क्या है? ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है. सो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. एग्जांपल क्या है? ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं. अब देखो, एक इंसुलेटिंग वॉल है यानी अडायाबेटिक वॉल, राइट? इंसुलेटिंग इज सेम एज अडायाबेटिक. राइट? तो इसमें से कोई हीट इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि वॉल अडायाबेटिक है. इसमें कोई मूवेबल पिस्टन भी नहीं है तो कोई वर्क भी नहीं हो सकता है, यानी एनर्जी ट्रांसफर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ऊपर से ये पूरी तरह से आपने बंद करके रखा है, इसको ढका हुआ है. देखो ऊपर से पूरा सील्ड कंटेनर है तो ऑब्वियसली कोई मैटर भी एस्केप कर नहीं सकता है और ना ही आप डाल सकते हो अपने हाथ से कुछ अंदर. दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. नो मैटर एक्सचेंज, नो एनर्जी एक्सचेंज.
energy is exchanged either in the form of heat or in the form of work. ना ही इसमें वर्क के फॉर्म में कुछ हो रहा है, क्योंकि पिस्टन नहीं है तो एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हो सकता है, तो वर्क भी नहीं हो रहा है, और हीट भी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल अडायाबेटिक है. Hence, this is an example of an isolated system. I am asking one question. Now tell me whether it is example of isolated system or a closed system. अभी किसी के घर पे अगर ये है थर्मोस फ्लास्क containing water, let's say thermos flask is there, उसके अंदर hot water डाल के रखा है और थर्मोस फ्लास्क को मैंने बंद कर दिया, इसका कंटेनर का लिड जो है, फ्लास्क का जो लिड है वो बंद कर दिया है. Then what type of system is this? So isolated. It's isolated. Correct. कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है मैटर का हीट का, और वर्क भी आप नहीं कर सकते बिकॉज उसमें लिक्विड है ना. लिक्विड पे आप एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं कर सकते, आप गैस पे कर सकते हो. पहली बात तो ये है. The other thing is that there is no piston attached, so you cannot compress anything or expand anything. So no possibility of work exists. That is why thermos flask is an example of an isolated system. Okay, next concept. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. इसमें थोड़ा इंसान को कंफ्यूजन होता है. लेट्स डू दैट. तो मैं आपको क्या करूंगा अभी, ये डिफरेंसेस तो चलो बाद में आप समझ जाओगे, ये तो थ्योरी है, बट मैं आपको समझाए तो इसका मतलब पहले कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. अच्छे से सुनो अभी, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट सी. एक आसान से पहले एग्जांपल देते हैं, उसके बाद थोड़ा टफ एग्जांपल देंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड. दोनों बिल्डिंग्स बनाए हैं मैंने. इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ना, डोंट लाफ, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू शो दिस एग्जांपल. दो बिल्डिंग्स है मानो, यहां पे एक इंसान खड़ा है. चलो इंसान तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, स्पाइडरमैन टाइप का इंसान है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, जो यहां से यहां कूदने की कोशिश करेगा फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू दैट बिल्डिंग. ओके, लेट्स से ही वांट्स टू रीच दिस बिल्डिंग, ऐसा यहां पहुंचना चाहता है वो. ठीक है. अब यहां पहुंचने के लिए, यहां पे पहुंचने के लिए उसके पास दो तरीके हैं. क्या क्या तरीके हैं? एक तो ये डायरेक्ट यहां पे वो जंप मारे, दैट्स व्हाई आई सेड सुपरमैन टाइप या स्पाइडरमैन टाइप. अगर इसको जंप मारना है तो जंप मारेगा. नाउ जंप मार के यहां पे अगर पहुंच गया तो फाइन, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दैट. But in that process, can I say that it's like an irreversible process because जब उसने जंप मारा तो या तो वो इधर पहुंचेगा या फिर वो नीचे गिरेगा. There is no other option possible. ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं अभी तो मैंने गलती की, चलो लेट्स कम बैक, तो वापस यहां पहुंच जाओ. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. एक बार अगर उसने जंप मारा, he cannot come back to the old building, that is this building जो लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्डिंग बना है मैंने. इस बिल्डिंग के ऊपर वापस वो नहीं आ सकता है. एक बार जंप मार दिया मतलब जंप मार दिया, जंप मार के सीधा इधर पहुंच गया. दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज he cannot come back to his initial position once he has already taken the jump. Okay? जब तक वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तब तक वो क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है. उसको ये डिस्टेंस तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा एक बार जंप आ रहा है मतलब. So can I say it is occurring in a single step? One step jump. So it is occurring in a single step. There is no possibility of multiple steps here. डायरेक्ट एक जंप मारा और पहुंचा. पहुंचा तो पहुंचा, अच्छी बात है. नहीं पहुंचा तो नीचे मर गया. दैट इज अ डिफरेंट केस. बट अगर पहुंच गया तो वो एक ही जंप में पहुंच गया. ऐसा नहीं है कि वो दो जंप्स मार सकता है या तीन जंप्स मार सकता है. So try to understand that. But let's take another case now. उसको जंप नहीं मारना है मानो,
रादर यहां से एक यहां ऐसा मैट टाइप या कनेक्टिंग ब्रिज टाइप लगा दिया है. दिस इज लाइक अ ब्रिज. नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? ब्रिज के ऊपर यहाँ पे आ गया वो, एक स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, फिर तीसरा स्टेप लिया, ऐसे करके वो जैसे हम लोग चलते हैं फुटपाथ पे, वैसे वो ब्रिज के ऊपर धीरे धीरे चल रहा है. चलते 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 gradually he will reach, eventually he will reach the other side of the building, I mean the other building he will reach, लेकिन टाइम लगेगा. और ये एक जंप में नहीं हुआ, ये मल्टीपल स्टेप्स में हुआ, बिकॉज वो चल रहा है लगातार. एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, ऐसे करके वो चल रहा है. जितने कदम ले रहा है, जितने स्टेप्स ले रहा है, उतने हम लोग उसको बोल रहे हैं मल्टीपल स्टेप्स. नंबर ऑफ स्टेप्स इज इंक्रीजिंग if he is going slowly with the help of this bridge. So this is a reversible process. Now why is this a reversible process? Because अगर उसको अचानक लगा बीच में ब्रिज में पहुंचने के बाद, नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी टायर्ड, मुझे वापस जाना है, तो ही कैन गो बैक, वापस इसी ब्रिज से वो चल के यहां पहुंच जाएगा, है ना. ऐसा तो नहीं है कि एक बार ब्रिज पे चलना चालू कर दिया मतलब नहीं नहीं पहुंचना ही पहुंचना है दूसरे साइड पे बिल्डिंग के. नहीं, उसको अगर मन किया कि आई डोंट वांट टू वॉक ऑन दिस ब्रिज, आई वांट टू कम बैक टू माय ओरिजिनल बिल्डिंग, he will again walk back, he will start walking backwards and he will reach the original building. यानी ये रिवर्सिबल हो गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. अब ये मैंने तुमको ऐसे समझाया ताकि अगला एग्जांपल आसान हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्चुअल एग्जांपल. लेट्स से I have a cylinder containing a gas. मानो यहां पे ओरिजिनल पिस्टन है, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज दिस, ठीक है, और यहां पे आपका गैस है. नाउ अंडरस्टैंड ना, अभी ये थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, इसके पहले तो मैंने बस एनालॉजी दी टू मेक इट सिंपल. नाउ इट इज अ गैस. अब मुझे इस गैस को कंप्रेस करना है. अब मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों बता रहा हूं, पहले मैं इरिवर्सिबल बता रहा हूं, यानी सिंगल स्टेप में कंप्रेस करना है. तो क्या आएगा, एक बड़ा सा ब्लॉक लाओ, हैवी वाला ब्लॉक ऑफ मास m, इतना हैवी लाओ कि वो कंप्रेस हो सके पिस्टन. तो एक बार आपने ये ब्लॉक अगर डाल दिया, इमीडिएटली एक झटके में ये पिस्टन इधर आ जाएगा. So this distance is traveled by the piston because you have placed this block. That means you have applied a pressure. You have applied a pressure. What is the pressure? The pressure is due to the block. That means, can I say it is an external pressure which has been applied by you in order to compress the gas? Right? It is an external pressure because ये तो बाहर से apply है ना अभी. So it is an external pressure that is being applied in order to compress the gas. ये एक झटके में ऊपर से नीचे पिस्टन आ जाएगा, तो it is an irreversible compression. यानी क्या, जब मैंने ब्लॉक रख दिया तो इमीडिएटली वो आ जाएगा ना नीचे पिस्टन का पोजीशन. मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं अब तो मुझे वापस करना है. वापस करने का तरीका क्या है, एक बार वो यहाँ नीचे पहुंच गया, फिर मैं ब्लॉक यहाँ पे हटा दूं, है ना. एक बार नीचे पिस्टन आ गया ब्लॉक रखने के बाद, तो अभी मैं अगर ब्लॉक को हटा दूं तो फिर से वो ऊपर आ सकता है. लेकिन जब तक वो ब्लॉक उसके ऊपर था तब तक तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था ना. तब तक तो वो या तो यहाँ था या फिर यहाँ था. These are the two distinct positions for irreversible compression. I don't have any other possibility of position of piston in between. सर ये irreversible कैसे हुआ? Irreversible हुआ ना सर लेकिन जब हम ब्लॉक हटा देंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा ना. That is so after it has reached its this position ना,
जब तक ये पोजीशन तक नहीं पहुंचा तब तक क्या तुम कर सकते थे कुछ? हाँ सर, अगर बीच में हम लोग ब्लॉक हटा देते तो? बीच में कैसे हटाओगे? एक बार ब्लॉक रख दिया तो इमीडिएटली वो नीचे आ जाएगा ना। सर लेकिन हम ब्लॉक का मास कम करते रहेंगे तो धीरे-धीरे हाँ, तो दैट विल बी रिवर्सिबल। आई एम कमिंग टू दैट नाउ। मैं फिलहाल इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्लॉक अगर इतना हैवी है कि तुमने रख दिया, एक बार रखा मतलब इमीडिएटली वो नीचे आ जाएगा ना, तुमको टाइम क्या मिलेगा वो ब्लॉक उठाने का? सर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें मतलब कंटेनर का हाइट बढ़ा दिया तो फिर रिवर्सिबल हो सकता है। नो नो नो, वो सब नहीं कर रहे हैं फिलहाल। यू आर जस्ट, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द एक्सटर्नल कंडीशन, दैट इज द ब्लॉक, नथिंग एल्स। सर मतलब हम अगर एक प्रोसेस को देख रहे हैं और उसमें हमें ऐसा लगता है कि इसमें बस दो ही चॉइस है, या तो ये होगा या तो ये होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होगा। यस, मतलब उसके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं, या मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर यहां तक वो नहीं पहुंचा, जब तक वो यहां तक नहीं पहुंचा तब तक मैं उसको क्या, उसका पोजीशन रिवर्स कर पा रहा हूं? यहाँ पे नहीं। यहाँ पे वो पहुंच गया, एक बार ब्लॉक रखा मतलब पहुंच गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट आफ्टर इट हैज रीच्ड दिस पोजीशन, देन यू कैन रिमूव द ब्लॉक एंड अगेन मेक इट गो अपवर्ड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको छोड़ दो। लेकिन जब तक ये यहां तक नहीं पहुंचा था तब तक तो मैं उसको ऊपर नहीं कर पा रहा था ना। ब्लॉक रखने के इमीडिएट इफेक्ट से वो नीचे आ गया पिस्टन, दैट इज व्हाई इट इज इरिवर्सिबल। जैसे मैंने बोला, एक जंप मारा उसने, तो एक जंप मारा मतलब वो पहुंच गया ना, वो जंप मारने के बीच में वो कुछ कर नहीं सकता है, दैट इज व्हाई इट इज इरिवर्सिबल। और आई कैन से दैट मींस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ओनली, या तो ये वाला पोजीशन ए एंड ये वाला पोजीशन बी, बस। ए और बी के बीच में कुछ पॉसिबल है क्या? नो, दैट इज व्हाई इट इज इरिवर्सिबल। नाउ कमिंग टू रिवर्सिबल कंप्रेशन, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या है रिवर्सिबल का मतलब। Now same thing I will do, but I will do in a different manner. अब मानो पिस्टन ये है, लेकिन अभी मैंने ब्लॉक नहीं रखा, अभी मैंने ब्लॉक नहीं रखा, अभी मैंने क्या रखा, ये पोजीशन ए है मानो। अब मैंने छोटा छोटा थोड़ा सैंड पार्टिकल्स रखा, एक बहुत छोटा सैंड पार्टिकल या मानो कुछ मोती जैसा रखा, क्या होगा उससे? द मोमेंट आई कीप दैट, ये थोड़ा सा ही नीचे आएगा, ऐसा नीचे आएगा थोड़ा सा, यहां से यहां आया, वापस मैंने थोड़ा सैंड पार्टिकल ऐड किया, वापस ऐड किया सैंड पार्टिकल, वापस ये यहां से यहां थोड़ा नीचे आएगा, वापस मैंने थोड़ा सैंड पार्टिकल ऐड किया, अगेन दिस विल कम लिटिल डाउन, क्योंकि जितना वो नीचे आएगा वो डिपेंड करेगा कि तुम कितना सैंड पार्टिकल्स डाल रहे हो उस पे, डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द सैंड पार्टिकल्स। कितना सैंड पार्टिकल डाला है और उसका वजन कितना है सैंड पार्टिकल का, उस हिसाब से थोड़ा 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 करके पिस्टन का पोजीशन नीचे आता रहेगा। इन दिस वे, इफ आई कंटिन्यू टू डू दिस until I have reached position B. Now this is B. Until I have reached position B, अगर मैं ये काम करता रहूं तो इसको होने में बहुत टाइम लग जाएगा। And this is called a reversible compression. Now why reversible compression? अब देखो, किसी भी पॉइंट पे मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे इसको आगे कंप्रेस नहीं कराना है, मुझे वापस जाना है प्रीवियस पोजीशन पे, तो मैं कुछ सैंड पार्टिकल्स को हटा सकता हूं। कुछ सैंड पार्टिकल्स को हटा दूंगा तो पिस्टन ऑटोमेटिकली फिर थोड़ा ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर इस पोजीशन पे आने के बाद मुझे लगा नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, सो व्हाट आई डू, आई विल रिमूव सम सैंड पार्टिकल्स। इफ आई रिमूव सम सैंड पार्टिकल्स, यहां से वो इधर आ जाएगा, पिस्टन ऊपर आ गया थोड़ा सा, यानी रिवर्सिबल हो गया। वापस मैंने थोड़ा सैंड पार्टिकल हटा दिया, फिर से वो यहां से यहां आ जाएगा। इसका मतलब सैंड पार्टिकल्स का थोड़ा 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 हटाने से उस पिस्टन को हम लोग धीरे धीरे अलग अलग पोजीशंस पे ऊपर ला सकते हैं। दैट मींस
between A and B, I have numerous other possibilities of positions of piston. A और B के अंदर बीच में भी बहुत सारे पिस्टन के positions हैं, बट यहाँ पे ऐसा possibility नहीं था, क्योंकि यहाँ पे या तो वो A पे था या फिर वो B पे था, बीच में there was no other possibility of the position of piston. बिकॉज ब्लॉक का जो वेट था वो इतना हैवी था कि एक बार ब्लॉक रखने के साथ साथ इमीडिएटली दैट पिस्टन विल कम डाउन. यू कैन नॉट मेक इट कम हियर और हियर और हियर और हियर, सीधा वो नीचे आएगा. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि irreversible compression takes place in a single step, whereas reversible compression takes place in multiple steps or infinite steps. सिमिलरली अगर आप इसको चेक करोगे, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में एक झटके में हो गया, मतलब इट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, बट रिवर्सिबल कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस वेरी स्लोली. इफ समथिंग इज टेकिंग प्लेस वेरी स्लोली, दैट मींस इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीटेड. सर अगर वो ब्लॉक वाले केस में पहले से वो मतलब पूरा कंप्रेस हुआ, मतलब वॉल्यूम बहुत कम कर दिया हमने, करेक्ट, तो फिर स्लो ही होगा ना. स्लो कैसे हुआ? तुमने यहाँ ब्लॉक रखा और इमीडिएटली वो पिस्टन नीचे आ गया ना, तो इमीडिएटली कंप्रेस हो गया. गैस पहले से ही बहुत ज्यादा कंप्रेस है और तो फिर वो ज्यादा नीचे नहीं आ पाएगा ना. नहीं नहीं, ऐसा चुनना है हमको वेट ब्लॉक का कि वो बहुत नीचे आ जाए, वही तो बोल रहा हूँ मैं तुमसे. योर इंटेंशन इज टू कंप्रेस द गैस फ्रॉम ए टू बी, तो तुम उस हिसाब से ब्लॉक चुनोगे ना. तुमको अगर चाहिए कि मैं बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे लेके जाऊं, यानी बहुत कंप्रेस करूं किसी चीज को, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू अप्लाई एक्सटर्नली हाई प्रेशर. तो ब्लॉक का काम क्या है? कंप्रेस करना. वही एक्सटर्नल प्रेशर का काम कर रहा है ब्लॉक. So the block will have to be of sufficient weight so that it can compress the gas from A to B. That is why we are calling it irreversible compression ना. नहीं तो फिर वो रिवर्सिबल हो जाएगा. धीरे 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 करोगे, छोटा छोटा पार्टिकल डाल डाल के. तो भाई तुम्हारा इंटेंशन ही यह है कि वो कंप्रेशन हो जाए एक बार में, तो उस हिसाब से तुम एक्सटर्नल ब्लॉक चुनोगे. तो ब्लॉक का वेट उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा ताकि वो गैस ए से बी तक कंप्रेस हो जाए. तो एक बार अगर ब्लॉक मैंने रख दिया पिस्टन के ऊपर, इमीडिएटली वो नीचे आ जाएगा ना, इतना हैवी होगा अगर ब्लॉक तो. राइट. योर इंटेंशन इज फिक्स्ड कि तुमको उसको बी तक पहुंचाना है. अब कैसे पहुंचाओगे वो तुम्हारे ऊपर है कि रिवर्सिबली करोगे, धीरे धीरे करोगे, या एक ब्लॉक से कर दोगे अपना काम. दैट इज अप टू यू, बट करोगे तो वही ना, अल्टीमेटली उसको बी तक लेके जाना ही जाना है. क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ही वो है कि उसको कंप्रेस करो यहां तक. अब कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है. रिवर्सिबली करोगे तो तुमको धीरे धीरे करना पड़ेगा, इरिवर्सिबली करोगे तो एक झटके में काम हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. इसके लिए मैंने तुमको पहले स्पाइडरमैन का एग्जांपल दिया था कि वो एक झटके में जंप मारा तो इरिवर्सिबल, बिकॉज बीच में वो अपने स्टेप्स को रिवर्स नहीं कर सकता है ना. लेकिन वो ब्रिज के थ्रू गया तो वापस वो ब्रिज के थ्रू धीरे धीरे वापस पीछे चल भी सकता है. ब्रिज पे तो वो अपने हिसाब से चल सकता है, उसको लगेगा नहीं मुझे 2 कदम पीछे लेना है तो वो 2 कदम पीछे ले लेगा. दैट इज व्हाई इट इज रिवर्सिबल. जैसे यहाँ पे मैंने बोला सैंड पार्टिकल्स, 2 सैंड पार्टिकल्स हटाने हैं तो 2 सैंड पार्टिकल्स को मैं हटा दूंगा. अगर मैंने 2 सैंड पार्टिकल्स को हटा दिया तो फिर पिस्टन थोड़ा नीचे से ऊपर आ जाएगा. फिर से मैंने सैंड पार्टिकल्स डाल दिया, फिर से वो नीचे आ जाएगा. ऐसा तो धीरे धीरे वो नीचे या ऊपर जा रहा है बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द सैंड पार्टिकल. लेकिन अल्टीमेटली तो ए से बी आ ही रहा है ना. मल्टीपल टाइम्स आई एम causing sand particles, multiple times I'm adding sand particles, and that is why slowly and gradually it will come down. अब sand particles का weight जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब वो बी तक पहुंच जाएगा अल्टीमेटली. यानी धीरे धीरे मैं sand particles का weight बढ़ा रहा हूँ. कैसे बढ़ा रहा हूँ? ज्यादा sand particles डाल के. पहले 5 ग्राम sand particle डाला तो थोड़ा सा पिस्टन नीचे आया, फिर 10 ग्राम सैंड पार्टिकल डाला तो और थोड़ा सा पिस्टन नीचे आया, फिर और 15 सैंड पार्टिकल्स डाले और थोड़ा पिस्टन नीचे आया. ऐसे ऐसे करके मुझे अल्टीमेटली बी तक लेके जाना है सैंड पार्टिकल्स डाल के. बट अल्टीमेटली तो वो बी तक गया ना एट द एंड ऑफ दैट. बट यस, दिस इज हैपनिंग एक्सट्रीमली स्लोली एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल कंप्रेशन. Any reversible process is slow, any irreversible process is fast. And another important thing which you have to keep in mind is irreversible process में external pressure जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है compression में, है ना.
तो अभी अगर मैंने आपको बोला एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक का वेट लिया है ना इरिवर्सिबल कंप्रेशन में, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक काम कर रहा है आपका एक्सटर्नल प्रेशर का। ओके, तो ये ब्लॉक आपका काम कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर का। एंड कैन आई से दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर? एक बार ब्लॉक रख दिया मतलब वही प्रेशर डालेगा वो थ्रू आउट, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। यानी ए से बी तक जब पहुंच रहा है तो वो ब्लॉक तो प्रेजेंट है ना तभी, यानी वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। So the external pressure is a constant pressure which is acting on the system in order to cause irreversible compression. तो वही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे these are the points of difference, right? Now ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। Expansion of gas occurring against constant external pressure is irreversible expansion. इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ब्लॉक का, उसका उल्टा एग्जांपल। उल्टा एग्जांपल मतलब क्या? मतलब मानो ऑलरेडी मेरे पास ये है इनिशियल पोजीशन, मानो अगर ये वाला है, क्या बोलते हैं, ये अगर है इनिशियल पोजीशन, ऑलरेडी मानो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मानो मुझे इस गैस को एक्सपेंड करना है इरिवर्सिबली, यानी बी तक लेके अगर जाना है मुझे पिस्टन का पोजीशन, तो मैं इस ब्लॉक को हटा दूंगा, है ना। इनिशियल पोजीशन कौन सा है? ए, यानी ऑलरेडी अभी ऐसा है मानो, अचानक मैंने मानो ये ब्लॉक हटा दिया। अगर ब्लॉक हटा दिया, क्योंकि ब्लॉक का वेट बहुत ज्यादा था, एक झटके में वो ए से बी तक पहुंच जाएगा पिस्टन का पोजीशन। ए से बी तक पहुंच गया मतलब क्या हो गया? The expansion took place, and what kind of expansion? The expansion took place against external pressure. Against external pressure का मतलब क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया, यानी हटा दिया। तो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब ये ब्लॉक को हटा जो दिया मैंने, उसको बोलते हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। If I'm removing the block, the position of the piston will immediately become B. That is, it is moving from A to B. And since it is moving from A to B very fast, we are calling it an irreversible expansion. And irreversible expansion इसलिए बोल रहे हैं because block जो था वो हम लोगों ने एक ही झटके में हटा दिया, यानी उसका वेट जो था, उसका जो प्रेशर था, वो हम लोगों ने एक ही झटके में हटा दिया। एक ब्लॉक जो था, पूरे ब्लॉक को मैंने अगर हाथ से हटा दिया, मतलब it is against external pressure. The word against is used because उसको मैंने हटा दिया। Against external pressure. So against external pressure मतलब क्या है? The process is an irreversible expansion. So the word against is important, huh? Against constant external pressure मतलब irreversible expansion. And if I say compression of gas is taking place due to an application of constant external pressure, then it is irreversible compression. जो पहले लिया था ब्लॉक डालने का एग्जांपल। So the word due to and the word against will tell you whether it is expansion or whether it is compression. अगर मैंने external pressure apply किया है, that is due to an application. If I put external pressure, then it is irreversible compression. क्यों compression? क्योंकि मैं pressure डाल के उस चीज को compress कर रहा हूँ। तो application of external pressure is taking place. लेकिन अगर मैं expand करना चाह रहा हूँ तो मुझे external pressure को कम करना है, तो मैं ब्लॉक को हटा दूंगा। So expansion of gas is occurring against constant external pressure, and compression of gas is taking place due to the constant external pressure. But the word constant external pressure indicates that it is an irreversible process. Last point, a reversible process is so called because it can be reversed at any step by bringing a slight change in the driving force. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने देखो ये एग्जांपल बोला कि थोड़ा सैंड पार्टिकल मैं अगर हटा दूंगा थोड़ा सा, तो वह पिस्टन का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। यानी क्या किया मैंने ड्राइविंग फोर्स को मैंने कम कर दिया, है ना। तो चेंज कर दिया मैंने ड्राइविंग फोर्स को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइविंग फोर्स इन दिस केस? द सैंड पार्टिकल्स आर प्लेइंग द रोल ऑफ ड्राइविंग फोर्स इन दिस केस, राइट। दीज आर द सैंड पार्टिकल्स व्हिच आर प्लेइंग द रोल ऑफ ड्राइविंग फोर्स।
अगर मैंने थोड़ा सैंड पार्टिकल्स को कम कर दिया तो इमीडिएटली वो पिस्टन थोड़ा नीचे से ऊपर आ जाएगा. दैट मींस आई एम कॉजिंग अ चेंज इन द ड्राइविंग फोर्स. If I'm causing a change in the driving force, then the process is getting reversed because the piston is coming upward now. तो इसलिए इसको बोलते हैं reversible process. So a reversible process is so called because it can be reversed at any step by bringing a small, very slight change in the driving force. इस वर्ड का मतलब है small. इस वर्ड का क्या मतलब है? Small. मतलब स्लाइटली ऐसा बोल सकते हैं, स्लाइटली. दिस वर्ड इज कॉल्ड स्लाइटली. इनफाइनाइट सिमिली का मतलब होता है स्लाइटली, मतलब बहुत थोड़ा सा. ऑलराइट, लास्ट पार्ट दैट इज ग्राफ्स. ये आपको ग्राफ से जो बताने चाहिए. याद रखो A to B, अगर मैं एरो दिखा रहा हूं मतलब प्रोसेस A से B की ओर जा रहा है. एरो का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर मैं A to B एरो डाल रहा हूं मतलब प्रोसेस A to B जा रहा है. एंड अकॉर्डिंगली ये PV ग्राफ है, यानी प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है. तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है. अगर आप दिखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा V2 इज मोर देन V1. एंड इफ V2 इज मोर देन V1 वी कॉल इट एक्सपेंशन. क्यों? एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ जाता है इसके लिए. और ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्यों है? बिकॉज ये जो ग्राफ का मैंने नेचर ड्रॉ किया ना, ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है A to B, ये कर्व दिखाता है पिस्टन का अलग अलग पोजीशन. यानी हर एक पॉइंट जो लाई करेगा इस वाले कर्व पे, हर एक पॉइंट का मतलब होता है कि वो पिस्टन का कौन सा पोजीशन को डिफाइन कर रहा है. मतलब ये जो छोटा छोटा जो पोजीशन है, जैसे मानो ऐसे मैंने किया तो एक पहले पिस्टन इधर था, फिर पिस्टन इधर था, फिर पिस्टन इधर था. थोड़ा ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जब मैं सैंड पार्टिकल हटा रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा करके ये पिस्टन ऊपर जा रहा है. तो हर एक पोजीशन ऑफ द पिस्टन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन पॉइंट ऑन द कर्व, and that is why you get a continuous curve between A and B, because there are many possible positions for the piston. लेकिन अगर मैं irreversible expansion की बात करूं तो इसमें ऐसे आपको कर्व नजर नहीं आएगा. क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे या तो वो ऊपर है A पे है, या तो फिर वो नीचे है B पे है. राइट? So there are only 2 points. One is initial and one is final. A is the initial point, B is the final point. यानी A is the initial state of the gas, B is the final state of the gas. बीच में कोई हम लोग का अलग से और पॉसिबल प्रेशर वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि वो पिस्टन या तो नीचे है या फिर ऊपर है. बीच में कोई पोजीशन डिफाइंड नहीं है. अगर मैंने ब्लॉक हटा दिया तो that is why I don't draw any curve between A and B. I just write the 2 points A and B. So this is an example of irreversible expansion. Likewise, compression का भी वही है. A to B रिवर्सिबल है तो कंटिन्यूअस कर्व आएगा, और अगर इरिवर्सिबल है तो कंटिन्यूअस कर्व नहीं आएगा, सिर्फ 2 पॉइंट्स आएंगे, ये A और फिर ये B. A हमेशा हमारा इनिशियल पॉइंट है, B हमेशा हमारा फाइनल पॉइंट है. ये याद रखो आप, जो मैंने लिख दिया है. इनिशियल का मतलब P1 प्रेशर इज इनिशियल प्रेशर, P2 इज फाइनल प्रेशर, V1 is initial volume, V2 is final volume, and yes, for expansion V2 is more than V1, for compression P2 is more than P1. These are the basics of thermodynamics we have done today. Graphs बताने चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं which of the following is a correct graph. मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरो का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो, एरो दिखाना जरूरी है. देखो मैंने जैसे दिखाया है, एरो ये दिखाता है कि वो प्रोसेस कहां से कहां जा रहा है. ओके, सो रिवाइज दिस एंड कम, बिकॉज द नेक्स्ट लेक्चर इज टुमारो इन द मॉर्निंग. ओके, सो टुमारो द लेक्चर विल बी थोड़ा मैथमेटिकल. आज तो सिर्फ थ्योरी थी. ओके, हाँ अभी भेज देता हूँ मैं, वो तुम्हें भेज दूंगा. अभी नहीं, शायद अभी मुझे जाना पड़ेगा सेंटर. नोट करना है क्या? मैं यही बताऊंगा कि हमेशा इस चैप्टर में आप जब कुछ नोट करने की कोशिश कर रहे हो, नोट डाउन ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मूले एंड ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. बाकी कुछ नहीं भी नोट करोगे चलेगा, लेकिन ग्राफ्स और फॉर्मूले आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने ही करने हैं.
आज तो कोई फॉर्मूला था नहीं, लेकिन आज ग्राफ्स थे, तो वो ग्राफ्स आप लिख लो अपने नोटबुक में। कल से फॉर्मूला चालू हो जाएंगे तो फॉर्मूला भी लिख देना नोटबुक में। फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा ना, वो तो कंपल्सरी है। काफी सारे, आई एम टेलिंग यू दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, बट दिस चैप्टर हैज मेनी फॉर्मूले। ओके, कल मेरा लेक्चर है, थर्सडे को मेरा लेक्चर नहीं रहेगा, कल मेरा लेक्चर है सुबह आपके साथ। सर आप कल के पर एक बार नोट